इट इज, पॉइंट लिखने हैं आपको, बस लिखते जाइए। इट इज अ यूनिपोलर डिवाइस। इट इज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। इट इज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। इट इज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। Fabricated only with silicon. Fabricated only with silicon. SI. Fabricated only with silicon. ये ठीक है। Fabricated only with silicon. फिर लिखें less noisy device. Less noisy device. Less noisy device. Due to the absence of minority charge carriers. Less noisy device. Due to the absence of minority charge carriers. अगर minority charge carrier नहीं है तो फिर लीकेज करंट, वेरी गुड, लीकेज करंट is 0. Leakage current is 0. And therefore, leakage current is 0, and therefore, the temperature effect, and therefore, the temperature effect, and therefore, the temperature effect on device, and therefore, the temperature effect on device is practically 0. When compared to FET, when compared to FET with BJT, when compared to FET with BJT, FET is smaller. FET is smaller. FET is smaller in size, in size, and in size, and easier to fabricate, and easier to fabricate. आसानी से आप इसको बना सकते। अगला पॉइंट, हाई इनपुट रेजिस्टेंस। बीजेटी क्या था? बीजेटी क्या था? लो रेजिस्टेंस, हाई इनपुट रेजिस्टेंस। हाई इनपुट रेजिस्टेंस। फिर लिखें, बस ये सारे आपके क्वेश्चन के पॉइंट है। पावर डिसिपेशन इज वेरी लो। Power dissipation is very small, very low. Power dissipation is very small. It offers larger bandwidth. It offers larger bandwidth, and therefore the reproduction, it offers larger bandwidth, therefore the reproduction of input signal, therefore the reproduction of input signal is excellent, is excellent. Offset voltage is 0. Offset voltage is 0. Offset voltage is 0. Gain into bandwidth product is constant.
गेन इंटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट, बोर्ड पे लिखा हुआ है, गेन इंटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट कांस्टेंट। When compared to BJT, when compared to BJT, when compared to BJT, FET is a better, FET is a better device, FET is a better device as an amplifier. FET is a better device as an amplifier. ठीक है, ओके। फिर डिसएडवांटेज क्या है इसका? सब कुछ चीज बढ़िया है इसकी बीजेटी से, तो फिर दिक्कत कहां पे आई वो देख लेते हैं। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज देख लो, इसका डिसएडवांटेज है स्मॉलर गेन। इसका गेन जो है वो कैसा है? कम है, स्मॉलर गेन। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज है स्मॉलर गेन इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट, स्मॉलर गेन इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए एफईटी जो आपका होता है उसमें आपके होते हैं 3 टर्मिनल। एक होता है आपका सोर्स, एक होता है आपका ड्रेन, और एक होता है आपका कंट्रोलिंग, इसको हम लोग बोलते हैं गेट। ठीक है, एफईटी हमारा क्या है? एफईटी हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस, सोर्स, ड्रेन, गेट। ठीक है, इन 3 से मिला के हमने क्या बनाया? एफईटी। देखिए पहले सोर्स, सबसे पहले लिखिए सोर्स। क्या है सोर्स? इसको स्मॉल एस से प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। सोर्स देखिए, इट इज द टर्मिनल, सोर्स का लिखे, इट इज द टर्मिनल बाय विच, इट इज द टर्मिनल बाय विच majority carriers, it is the terminal by which majority carriers will be entering, majority carriers will be entering into the device, majority carriers will be entering into the device। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया हमारा इनलेट, यहां से आपके पास मेजॉरिटी चार्ज करिए एंटर करेंगे। ठीक है, डिवाइस के अंदर। फिर लिखिए ड्रेन, इसको लिख रहे हैं हम लोग कैपिटल डी से, ड्रेन। इसमें लिखिए इट इज द टर्मिनल, इट इज द टर्मिनल, इट इज द टर्मिनल by which, it is the terminal by which the majority carriers will be leaving, the majority carriers will be leaving the device। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? आउटलेट। यहां से आपके मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस से बाहर निकलेंगे। गेट, थर्ड आपका है गेट। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग कैपिटल जी से। वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस विथ कैपिटल जी। लिख ले इसके बारे में, इट इज द टर्मिनल, इट इज द टर्मिनल which control the flow, which control the flow of majority carriers, which control the flow of majority carriers from source to drain। It is a terminal which control the flow of majority carriers moving from source to drain, moving from
source to drain, or indirectly it control the drain current, or indirectly it control the drain current. तो आप लोगों ने देखा है क्या बोलते हैं, आपके पास होता है काइंड ऑफ ऐसे पानी का नल होता है, टैप टैप वाटर देखा है इसे? तो यहां से आपके पास आ रहा है वाटर, ये क्या हो गया इनलेट, ये क्या हो गया सोर्स। वाटर यहां से जाएगा, ये क्या हो गया आपके पास आउटलेट, पानी निकल रहा है, ये क्या हो गया ड्रेन। और ये जो आप नॉब घुमाते हैं, है ना, ये हमारा क्या है गेट, जो कंट्रोल कर रहा है वाटर को यहां से फ्लो करने के लिए। अगर आप इसको बंद कर देंगे वाटर आपका स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो यहां से आइडिया लेके बनाया गया आपका एफईटी, ठीक है, ये कंसेप्ट है। चलिए लिखें, एक और पॉइंट लिख लें। FET is a symmetrical device. 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 That is the source and drain. That is the source and drain terminals. That is the source and drain terminals. The source and drain terminals can be interchanged. The source and drain terminals can be interchanged. The source and drain terminals can be interchanged practically. The source and drain terminals can be interchanged practically. जबकि बीजेटी हमारा कैसा है, बीजेटी इज अ, उसी नीचे लिख लेना अगला पॉइंट, बीजेटी इज अ asymmetrical device. BJT is a asymmetrical device. BJT is a asymmetrical device. BJT is a asymmetrical device. तो FET जो हमारा, उसके दो टाइप, एक है JFET और एक है MOSFET। आपके सिलेबस में क्या है JFET। मूव क्यों नहीं कर रहा है? चलिए कोई लिखिए, ऐसे नाम लिख लें इसका, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक। इसमें लिख लें इसका नाम, मॉसफेट का नाम लिख लें मेटल ऑक्साइड। मॉसफेट का नाम लिख लो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका एक नाम और है IGFET। इसको लिख लो, एक नाम और है इसका IGFET। इंसुलेटेड इंसुलेटेड गेट, IG का मतलब है इंसुलेटेड गेट, और FET आपका भाई फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नाउअडेज हम लोग इनको क्या पढ़ते हैं, मॉस्ट। अब हम लोग मॉसफेट नहीं बोलते, जो लेटेस्ट जो फैशन में है आजकल वो क्या है, उसका नाम मॉस्ट, नॉट मॉसफेट। तो मॉस्ट जो है उसका नाम लिख लो, मॉस्ट जो है उसको लिख लो मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। एक और नाम इसी का ही, और या तो आप बोल सकते हैं इसको, मॉस्ट को बता रहा हूं, मॉस्ट को या तो बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, या फिर आप बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। देख लो, मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। चलिए, तो उनके नाम हो गए। अब एक एक करके पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखते हो यहां पे। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, इट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। क्या क्या है इसके पास, सोर्स, गेन एंड ड्रेन। इट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। इस पे लिख लो, यहाँ पे मॉसफेट लिख लो, यहाँ पे यहाँ लिख लो, इट इज अ 4 टर्मिनल डिवाइस। मॉसफेट लिखना, मॉसफेट में, मॉसफेट में लिखिए इट इज अ 4 टर्मिनल डिवाइस। इट इज अ 4 टर्मिनल डिवाइस। ये वाला, अभी हाँ, ये वाला कौन सा, ये तो पेंसिल है, ये वाला, इसमें क्या होगा, ये वाला क्या, राइट हैंड साइड। काम ही नहीं कर रहा है, फिर निप टूट गया ना इसका, तब से पता नहीं क्या दिक्कत है। ये पता नहीं, मूव भी नहीं कर रहा है। अच्छा, ये क्या है, जूम आउट जूम इन है क्या? अच्छा, ठीक है, तो इस पे लिख लें एक एक पॉइंट। इट इज अ 4 टर्मिनल डिवाइस, सोर्स, कॉमा गेट, कॉमा ड्रेन, और एक टर्मिनल इसके पास और है, उसको हम लोग लिखते हैं SUB। ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट, इसको बोलते हैं हम लोग
सबस्ट्रेट, SUBSTRAT, सबस्ट्रेट। फिर इसमें लिख लें, इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो होता है 10⁶ टू 10⁸ ओम। इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है 10⁶ टू 10⁸ ओम, और इसका जो है वो कितना है, वो आपके पास है 10⁻15 10⁻15 टू अप टू, मतलब मैक्सिमम कितना है 10⁻10 ओम टू 10⁻50 मैक्सिमम है आपका। किसका इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब पावर कंजम्पशन किसमें कम होगा, JFET की मॉसफेट। जिस किसी भी डिवाइस का इनपुट रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें पावर कंजम्पशन उतना ही कम होगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे, कंपेयर टू JFET मॉसफेट, मॉसफेट में पावर कंजम्पशन कैसा है, बहुत ही कम, ना के बराबर, नेग्लेजिबल। ठीक है, अगले क्या, इसके नीचे रखना, यहाँ रखना एक पॉइंट, हाईएस्ट RI, हाईएस्ट RI डिवाइस, हाईएस्ट RI इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस मॉसफेट, है ना, हाईएस्ट RI डिवाइस मॉसफेट। अब ये जो आपके पास है JFET, इसके भी दो टाइप है, ये आपके सिलेबस में हमें पढ़ना है। एक है N चैनल, एक है P चैनल। एक को बोलते हैं हम लोग N चैनल JFET, एक को बोलते हैं हम लोग P चैनल JFET। ये आपकी समरी है तरीके से, आप बस इसको पढ़ के चले जाएं, काफी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। एक है आपका N चैनल JFET और एक आपका P चैनल JFET। N चैनल JFET अगर आप बनाएंगे उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, और P चैनल JFET अगर आप बनाएंगे इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये सिंबल है N चैनल और P चैनल। एक में करंट जा रहा है इनसाइड और एक में करंट जा रहा है आउटवर्ड। तो करंट जाएगा इनसाइड मतलब N चैनल, करंट जाएगा बाहर तो P चैनल। मॉसफेट के बारे में इतना नहीं पढ़ना है, बस मैं यहाँ पे हल्का फुल्का लिखवा रहा हूँ आपको, इतना नहीं पढ़ना है आपको मॉसफेट के बारे में। मॉसफेट के भी दो टाइप हैं, एक है डिप्लीशन मॉसफेट और एक है एनहांसमेंट। एक है डिप्लीशन मॉसफेट और एक है एनहांसमेंट मॉसफेट। डिप्लीशन मॉसफेट एंड एनहांसमेंट मॉसफेट। इसका जो नाम है डिप्लीशन, इसमें दो लेटर यहाँ पे हिडन है, इनसे आप आइडिया लगा सकते हो। ये है DE मॉसफेट, देखो आप स्टार्टिंग दो है DE, यहां से आप पता लगा सकते हो। मैं कई बार मॉसफेट लिख दूंगा, कभी मॉस लिख दूंगा, आप समझ जाना एक ही बात है। तो DE मॉसफेट का मतलब इसका है कि बताना चाह रहे हैं कि ये आपका डिप्लीशन एज वेल एज एनहांसमेंट दोनों तरह की कंडीशन से काम करता है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा ओनली एनहांसमेंट, ई ओनली। ये सब चीजें क्या होती है आपको जानने जरूरत है नहीं, बस आप लिख लीजिए, मान लो 1 नंबर क्वेश्चन आ गया तो आप टिक कर देना। क्या होता है, ये सब आपके कोर्स में नहीं है, कोई फायदा नहीं पढ़ने का, समझ लीजिए। तो ये जो पहला वाला आपका है, इट इज सुटेबल टू ऑपरेट इन बोथ मोड, डिप्लीशन मोड एज वेल एज एनहांसमेंट मोड, एंड दिस वन इज सुटेबल टू ऑपरेट ओनली इन एनहांसमेंट मोड। ठीक है, ये सिर्फ इस मोड में काम करता है। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लें, डिप्लीशन मॉसफेट में
ऑलरेडी एक चैनल आपको दिया जाता है ना, देख लो, प्री एग्जिस्टिंग चैनल इज अवेलेबल, प्री एग्जिस्टिंग चैनल, डिप्लीशन में लिखना है आपको, प्री एग्जिस्टिंग चैनल, प्री एग्जिस्टिंग चैनल इज अवेलेबल बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, प्री एग्जिस्टिंग चैनल इज अवेलेबल बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, यहां लिख लीजिए अनाउंसमेंट में। There is no pre-existing channel. There is no pre-existing channel. There is no pre-existing channel. And the channel, there is no pre-existing channel. And the channel must be created. And the channel must be created by applying, must be created by applying gate to source voltage, by applying gate to source voltage, gate to source, gate to source voltage, ठीक है। फर्दर जो आपका डिप्लीशन है, अगेन इट हैज टू टाइप, एन चैनल, पी चैनल। एन चैनल डिप्लीशन MOSFET, पी चैनल depletion MOSFET. It has two types, N channel E MOSFET enhancement और P channel E MOSFET। तो आपका क्वेश्चन जो होगा बस इसी में से बन जाएगा, जो भी पूछेगा। तो मैं पूरी सारी समरी लिखवा दिया यहाँ पे, काइंड ऑफ। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, JFET। ये पढ़ना है तो ये पढ़ना है JFET, इसको देख लेते हैं। देखें N चैनल JFET, N चैनल JFET। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम लोग, एन चैनल। ठीक है, तो हम क्या किया, हमने एक ले लिया, हमने एन टाइप का, आपके पास एक मटेरियल ले लिया हमने, ये एन टाइप है ना, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने मिला दिया पी टाइप, और इसकी हमने क्या करी, कंसंट्रेशन कर दी ज्यादा। ठीक है, ये वाला टर्मिनल हमारा क्या है, ये क्या बता रहा था, दिस वन, ड्रेन और सोर्स, ड्रेन, ये हमारा है ड्रेन टर्मिनल, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है सोर्स टर्मिनल। इन दोनों को आपने क्या किया, आपस में अटैच कर दिया। इन दोनों को आपस में ऐड करके तो यहां हमने चैनल बना दिया, इसको नाम क्या दे दिया हमने, गेट। ठीक है, अभी कैसा है, अभी ये ओपन सर्किट है, मतलब हमने इसके चारों तरफ कोई बैटरी वैटरी नहीं लगाई। तो स्टार्टिंग में क्या होगा आपके पास, जैसे आप इनको कॉन्टैक्ट में लेके आओगे तो ये है पी टाइप, और ये बीच में क्या है, एन टाइप। तो हमेशा पी और एन जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके जहां पे कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहां पे क्या बन जाता है, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, इसकी इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, बहुत ज्यादा है, और इसकी कम है। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा वहां पर डिप्लीशन की बढ़त होती है कम, और जिसकी होती है कंसंट्रेशन कम वहां पर डिप्लीशन होती है हैवी। देखो यहाँ पे
यहाँ पे हमारे पास आ गई एक डिप्लीशन लेयर। पढ़ चुके हैं सब कुछ हम लोग। और इसके अंदर कैसी होगी? बहुत ही कम, ना के बराबर, बिल्कुल कम ही कम। ये बनेगी डिप्लीशन लेयर, ठीक है ना। सिमिलरली है एक डिप्लीशन लेयर यहाँ भी बन जाएगी। चलो इसको बना लो आप लोग पहले जल्दी से। सभी लोग इसको बना लें। जो चैनल है उसकी लेंथ मान लेते हैं L है, और जो चैनल है उसकी विड्थ मान लेते हैं W डैश। और ये हमारे पास कैसा है? ओपन सर्किट। हमने कोई भी किसी भी तरीके की वाइसिंग इसमें नहीं की है। ओपन सर्किट JFET। इसको बोलते हैं हम लोग एन चैनल। इसको बोलते हैं हम लोग एन चैनल। कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ चैनल और W डैश इज द विड्थ ऑफ चैनल। हो गया? बना लिया? ये है हमारा ओपन सर्किट चैनल। अच्छा अब देखें यहाँ पे, जो आपके पास ये ओपन सर्किट है JFET, उस टाइम जो आपको दिख रहा है ये एरिया, ये जो एरिया बीच में खाली दिख रहा है आपको, ये स्पेस खाली है, ये उस टाइम जो आपने कोई भी बाइसिंग नहीं करी है उस टाइम ये स्पेस जो दिख रहा है आपको ये मैक्सिमम है। ये एरिया कैसा है? मैक्सिमम है। अगर ये एरिया मैक्सिमम है कब? ओपन सर्किट में। तो उस टाइम पे करंट डेंसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम की मिनिमम? करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी जे क्या होता है? अगर एरिया मैक्सिमम है तो करंट डेंसिटी कैसी होगी? मिनिमम। सही है ना? कब? व्हेन, देख लो एक लाइन, इन ओपन सर्किट JFET channel cross section area in open circuit JFET in open circuit JFET in open circuit JFET the channel cross section area is maximum and therefore the channel current density is minimum ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है पॉइंट। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, इसमें बाइसिंग करते हैं। अब क्या करते हैं इसमें हम लोग? थोड़ा बाइसिंग कर देते हैं, देखिए जरा समझिएगा। अच्छा हटा दूं मैं? ये तो लिख लिया अपन ने, अलग से बनाना डायग्राम। अब डायग्राम बनाना अलग से, मैं इससे बाइसिंग कर रहा हूँ। देखो यहां पर एक काम करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस से। अभी ओपन सर्किट तो रहा नहीं, और यहां लगाते हैं एक
बैटरी, और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग सोर्स के साथ में, और ये बैटरी आपकी वेरी कर रही है। इसको बोलते हैं हम लोग VDD, इसको बोलते हैं हम लोग RD, ड्रेन रेजिस्टेंस, ठीक है। और ड्रेन पॉइंट से लेकर सोर्स पॉइंट तक का जो पोटेंशियल है उसको हम क्या बोलेंगे, VDS, ठीक है। इससे क्या बोलेंगे हम लोग, VDS। बनाओ उसको, मैं सब इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग अपने तरीके से कर ले, मतलब अलग से नया बनाना, ठीक है। ये डिप्लीशन लेयर है, सब हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। अंदर वाले नहीं हटा रहा हूँ मैं, बिकॉज अब इतना स्पेस नहीं है उसमें, ठीक है। और गेट टू सोर्स मैंने लगा दी ये बाइसिंग, ठीक है सभी लोग, ये बाइसिंग हो गेट टू सोर्स, इसको नाम दे दिया हमने BGS, और ये भी वेरी करा सकते हैं आप। तो गेट टू सोर्स आपके पास जो बाइसिंग है वो रिवर्स बाइसिंग है कि फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स। रिवर्स बाइसिंग का रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई या लो, हाई। इसका मतलब जो इनपुट रेजिस्टेंस आ रही है वो कैसा होगा, हाई, ग्रेटर देन, ये पढ़ा था हम लोगों ने अभी, इनपुट रेजिस्टेंस फॉर JFET इज वेरी हाई, इट इज ग्रेटर देन 10⁶, ये पढ़ा था। अच्छा, फिर देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल पॉजिटिव, और इसके पॉइंट पे क्या है, नेगेटिव। समझना है, थोड़ा बताना आप लोग। लाइक ये मेरे पास रजिस्टर है, यहां मैंने एक बैटरी लगा दी 5 वोल्ट की। अब इस 5 वोल्ट को आप रजिस्टर में क्या डिवाइड करोगे, इस रजिस्टर को मान लीजिए ये हमारा है फॉर एग्जांपल 5 ओम का, ठीक है ना, 5 ओम का। तो आप क्या करें, इसको मैंने मान लीजिए ऐसे 5 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, 1 2 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। क्या दे रखा है हमने, इसका क्रॉस वोल्टेज कितना रखा है, तो ये 5 वोल्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ है 5 वोल्ट, हर एक का रेजिस्टेंस है 1 ओम, ठीक है, हर एक का रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो क्या होगा आपके पास, 5 वोल्ट से आएगा, तो 5 वोल्ट था आपके पास 5 ओम के क्रॉस, तो ये पूरा का पूरा 5 वोल्ट ऐसे सब सीरीज में लगे हुए, इसके क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5 वोल्ट से यहाँ पे आए, मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉप कितना हो गया, 1 वोल्ट, यहाँ कितना बचा, 4 वोल्ट, फिर यहाँ ड्रॉप हो गया 1 वोल्ट, कितना बचा, फिर यहाँ ड्रॉप हो गया 1 वोल्ट, कितना बचा, फिर यहाँ ड्रॉप हो गया 1 वोल्ट, कितना बचा, और फिर यहाँ ड्रॉप हो गया 1 वोल्ट, यहाँ कितना बचा। ऐसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन, सही है, यहाँ आ जाए। तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव है तो ये हाइयर है, और जैसे जैसे आप आपके पास जो मटेरियल है एन टाइप, उससे आप जैसे अंदर जाते जाएंगे आपका पोटेंशियल गिरता जाएगा, और यहाँ के क्या बन जाएगा, 0, ये ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, फिर यहाँ कम, फिर यहाँ और कम, फिर यहाँ और कम, फिर और कम, ऐसे हो रहा है। समझा दिया मैंने कैसे हो रहा है, 5 4 3 2, ओके चलो। तो लेट सपोज यहाँ है 4 वोल्ट, ठीक है, ये क्या है, एन टाइप, ये क्या है, तो आपके पास कुछ ऐसा हो रहा है कि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। एन टाइप में क्या लगा हुआ है, 4 वोल्ट, और पी टाइप में क्या लगा हुआ है,
क्या लगा, नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव वोल्टेज। ये फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है? रिवर्स बायस है। एन में पॉजिटिव, पी में नेगेटिव, रिवर्स बायस। अगर ये रिवर्स बायस है इसका मतलब डिप्लेशन की विड्थ बढ़ेगी, है ना, और फॉरवर्ड भी क्या होती है, कम होती है। अच्छा, तो यहां वोल्टेज है 4, तो इसका मतलब डिप्लेशन लेयर होनी चाहिए ज्यादा, लाइक दिस। अगर ये वोल्टेज मैं कर दूं 3, तब क्या होगा, इसके कंपेयर में डिप्लेशन की विड्थ कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी। अगर मैं कर दूं 2 वोल्ट, तो धीरे धीरे आपके पास जो रिवर्स बाइसिंग है उसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, तो आपके पास डिप्लेशन लेयर कंपेयर टू 4 वोल्ट कैसे हो जाएगी, कम होती जाएगी। देखो यहां है 4 वोल्ट, इसका मतलब यहां पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे वोल्टेज कम हो रही है डिप्लेशन लेयर की विड्थ मैं कम करता जा रहा हूं, कम हो रही है, लाइक दिस। क्लियर पॉइंट। नाउ सिमिलरली यहां पर भी डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज्यादा होगी, और फिर जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये कम होती है, सही है। अब अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं वोल्टेज, तो एक टाइम पे दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को टच कर जाएंगे, और एक टाइम पे जब एक दूसरे को टच कर जाएंगे तो क्या यहां से कोई करंट फ्लो करेगा। आपके पास सोर्स ये क्या है, एन टाइप, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब सोर्स का क्या होता था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सोर्स से क्या होते थे, एंटर, और कहां से निकलते थे, ट्रेन से बाहर जाते थे, ये बताया था मैंने भी आपको। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां चला और इसको ये पाथ यहां पे बंद मिल गया, क्या वो आगे मूव कर पाएगा, नहीं, आपका करंट क्या होगा, वहां जरा रुक जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस है जो हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे डिप्रेशन लेयर फॉर्म होती है ये मैंने यहाँ पे आपको बना दिया, चलो इसको बना लो आप लोग। बना लीजिए, इसको बनाने से भी। अच्छा, रिवर्स बाइसिंग में आपके पास रेजिस्टेंस कैसा है, बहुत ही हाई, तो करंट कैसा होगा, बहुत ही कम, ना के बराबर। तो ये जो गेट करंट होता है आपके पास, ये जो गेट करंट होता है आपके पास, ये होता है IG, ये कैसा होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जीरो, देख लो। इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बस ये समझने का था कैसे काम कर रहा है, बस एक दो पॉइंट लिख पाएंगे, बस ये खत्म हो जाएगा आपका। इसको बना लीजिए सभी लोग। ठीक है, पहला पॉइंट, द इनपुट रेजिस्टेंस RI, the input resistance RI is very high, so the input resistance RI is very high, so the input current IG, that is gate current, so the input current IG, that is the gate current, is almost negligible, equal to zero, is almost negligible, equal to zero. इन JFET, अच्छा एक चीज बताओ, यहां पे जब आप इसको बढ़ाते जाओगे आपके पास डिप्लीशन यहाँ पे फॉर्म होती जाएगी, इसका मतलब जो चैनल है उसकी ब्रिड्थ क्या होती है, कम होती जाएगी, है ना। इन JFET when VDS is applied, in JFET when VDS is applied, channel width decreases, when VDS is applied
the channel width decreases, and we can say channel cross sectional area, and we can say channel cross sectional area, and we can say channel cross sectional area decreases, and we can say channel cross sectional area decreases, channel cross sectional area decreases, and therefore the channel current density, and therefore the channel current density क्या होगी increases. And therefore the channel current density increases. In n-channel JFET, उसको बुलाना जरा कोई जरा, उसको कुलदीप को लगाना. In n-channel JFET, the width of the channel, in n-channel JFET, the width of the channel is minimum. The width of the channel is minimum nearer to the drain. देखो ये ड्रेन है, ड्रेन के पास में इसकी विड्थ कम है और सोर्स के पास इसकी विड्थ ज्यादा है. नहीं था नहीं क्या, ये बंद हो गया क्या? नहीं, सिस्टम चल रहा है, वो भी चल रहा है, वो बंद हुआ है सर. वो तो कंटिन्यू चल रहा है, टाइम चलता रहेगा. करो जरा सही इसको. अच्छा क्या तो उसमें कट हो जाता है, कई बार कट होता हुआ ध्यान नहीं दिया मैं. टाइम तो चलता रहेगा ना, ठीक है. हाँ टाइम चलता रहेगा, है ना. ओके फिर देखें. आगे सही है. चल रहा है. देखिए फॉर एन चैनल JFET, gate voltage is negative. For n channel JFET, the gate voltage is negative. And for the p channel JFET, the gate voltage is positive. याद करने का सबसे सिंपल तरीका, n है तो फिर नेगेटिव, p है तो फिर, याद करने का सिंपल तरीका है ना, gate voltage is positive. In JFET, channel is wedge shaped. WEDGE, wedge shaped. In JFET, gate to source is always operated. Gate to source
is always operated, gate to source is always operated under reverse biased. Gate to source is always operated under reverse biased. ठीक है, चलिए अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम है वो बना लेते हैं। पहला डायग्राम क्या है इसका? हेड और हेडिंग, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। एंड डालो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक यहां लेते हैं हम लोग ड्रेन करंट आईडी इन मिली एम्पियर। यहां लेते हैं हम लोग गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस VGS। ठीक है, कैसे बनती है कैरेक्टरिस्टिक? लाइक दिस, दिस इज योर IDSS and here the drain current is 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं माइनस VGS ऑफ। गेट टू सोर्स वो वोल्टेज जिस पर आपका ड्रेन करंट 0 हो जाए, माइनस VGS ऑफ। और थ्रू आउट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आपका BDS कैसा है? कांस्टेंट। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को हमने क्या लिया है? कांस्टेंट लिया। ठीक है, तो मैक्सिमम ड्रेन करंट कब होगा? मैक्सिमम ड्रेन करंट कब होगा? बोलो कोई। मैक्सिमम ड्रेन करंट क्या है? IDSS। और ये कब है? व्हेन VGS इक्वल टू व्हाट? वेरी गुड। मतलब अगर आप गेट टू सोर्स कोई वोल्टेज यहां नहीं लगाते हैं तो जो ड्रेन करंट आपके पास फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, करंट ऐसे चलेगा, है ना? तो जो मैक्सिमम आपके पास ड्रेन करंट इसमें चलेगा वो क्या होगा? IDSS। जब यहां पे कुछ भी आप नहीं लगाओगे। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पर रिवर्स बायसिंग बढ़ाते जाओगे आपके पास जो ड्रेन करंट है क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। और एक किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे आप देखोगे कि ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को टच कर जाएंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा पाएगा, मतलब आपका ड्रेन करंट 0 होगा। ठीक, इसका नाम लिख लो, इसका नाम IDSS का नाम लिख लो। IDSS का नाम लिख लो, ड्रेन टू सोर्स सेफ करंट। ड्रेन टू सोर्स सेफ करंट। ड्रेन टू सोर्स सेफ करंट। सेफ्टी वाला ड्रेन टू सोर्स सेफ करंट। और ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है ना? तो लेट्स सपोज हमने क्या किया, पहले हमने दिया -1 वोल्ट। ठीक है, करंट कुछ फ्लो करता रहा। हमने दिया -3 वोल्ट, करंट अभी भी कुछ फ्लो करता रहा। क्या देखो, हमने दिया -5 वोल्ट, करंट मान लो अभी फ्लो करता रहा। हमने BGS दिया -8 वोल्ट। और मान लीजिए इस कंडीशन पे आके क्या हो गया आपके पास कि जो ड्रेन करंट था इस कंडीशन पे आके क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये जो -8 वोल्ट हुआ आपका, ये क्या हो गया? BGS ऑफ, जिसपे ड्रेन करंट क्या हो गया? 0। देख लो, इसे BGS ऑफ बोल सकते हैं, इसको आप BGS कट ऑफ बोल सकते हैं, जैसा भी आपको दिख के देगा वो आप इसको समझ जाइए। BGS ऑफ बोलिए, BGS कट ऑफ बोलिए। तो ID हमारा क्या हो जाने वाला है? 0।
बोथ डिप्लीशन लेयर क्या करेंगे इस टाइम पे, हमारी एक दूसरे को टच कर देंगे, है ना। दोनों के दोनों डिप्लीशन लेयर क्या करेंगे, एक दूसरे को वहां पे उस पॉइंट पे आके टच कर। तो उसको ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बनाई हमने, क्या नाम दिया हमने इसको, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। इट इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आपकी है वो किस किस के बीच में है, बोलिए, आईडी वर्सेस VGS, और क्या लिया हमने, टेकिंग VDS एज अ कांस्टेंट। जब आप ये प्लॉट करेंगे आपको क्या मिलेगा, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए ऐसे बना लीजिए फॉर पी चैनल, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पी चैनल। यहां देखो सभी लोग, यहां देखो, फॉर पी चैनल एन क्या होगा, एन के प्लेस पे क्या होगा, पी के प्लेस पे क्या होगा, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव। बताया ना अभी आपको, एन टाइप एन चैनल में ये नेगेटिव है, पी चैनल में ये पॉजिटिव, ठीक है ना। चलो लिख रहे हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पी चैनल, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पी चैनल। बना दिया। अब क्या बोला मैंने आपको कि पीजीएस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देखो मैंने पॉजिटिव बनाया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईडीएसएस। और आगे चलते जाएंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, बीजीएस ऑफ, क्या बोल सकते हैं, बीजीएस कट ऑफ। और इस पूरे थ्रू आउट जो आपका, इस पूरे के पूरे थ्रू आउट आपका जो बीडीएस है वो कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। इस पूरे के पूरे थ्रू आउट आपका बीडीएस रहने वाला है कांस्टेंट। चलिए एक तो पॉइंट है, बना लें इसको। ये है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पी चैनल, है ना, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पी चैनल। लिखें द मैक्सिमम ड्रेन करंट, एक दो लाइन लिखनी है बस, द मैक्सिमम ड्रेन करंट in JFET, the maximum drain current in JFET कितने होती है, क्या होता है बताओ, देख के क्या होता है, मैक्सिमम ड्रेन करंट IDSS, the maximum drain current in JFET is IDSS, is IDSS। फिर लिखें, फिर लिखिए ID is equal to IDSS, ID is equal to IDSS, ID is equal to IDSS only when, ID is equal to IDSS only when VGS is kept 0, VGS is kept 0। ठीक है, फिर लिखें in n channel JFET, in n channel JFET if gate is given, in n channel JFET if gate is given, if gate is given more negative voltage, if gate is given more negative voltage, if gate is given more negative voltage, ID decreases, ID decreases। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखें, द प्रोसेस वेयर, द प्रोसेस वेयर, द प्रोसेस वेयर
the channel width is altered. The process where the channel width is altered. The process where the channel width is altered by varying the gate to source voltage. By varying the gate to source voltage. By varying the gate to source voltage is called channel width modulation. Is called channel width modulation. बीजेटी में क्या था? बीजेटी में क्या था? बीजेटी में हाँ कल पढ़ा था? कल ही क्लास थी? कब क्लास थी? कल थी क्लास? बीजेटी में क्या था? जैसे यहाँ पे चैनल इसकी चेंज की जा रही है, बीजेटी में क्या हो रहा था? बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है ना? वहां लिख लो साइड से, चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन इन, लिख लो पॉइंट, चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन इन, चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन इन JFET एंड MOSFET. JFET एंड MOSFET. और नीचे लाइन करके बेस विड्थ मॉड्यूलेशन इन, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन इन किसमें था? BJT. बेस विड्थ मॉड्यूलेशन इन BJT. फिर लिखें अगला पॉइंट, BGS वर्सेस BGS, नहीं एक ID वर्सेस BDS का, ID वर्सेस BDS का, टेकिंग BGS एज अ कांस्टेंट. ड्रेन करंट वर्सेस BDS ग्राफ, taking BGS as a constant. इसका नाम लिख लो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक. पहले वाला क्या था? ट्रांसफर है ना? इसका नाम है आउटपुट और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक. आउटपुट और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है? देखें, अगर हमने लिया BGS 0 तो एक टाइम पे आ जाएगा हमारे पास सैचुरेशन. इस थ्रू आउट हमने क्या लिया है? BGS हमने क्या लिया है? 0 वोल्ट. थ्रू आउट हमने क्या लिया है? BGS को हमने लिया है 0. ये हम क्या कर रहे हैं? एन चैनल. ध्यान रखना, किसका बना रहे हैं हम लोग? एन चैनल. ध्यान रखना, ये हम लोग बना रहे हैं किसके लिए? फॉर एन चैनल. तो एन चैनल में हम क्या करते हैं? BGS को नेगेटिव पॉजिटिव, बोलो, नेगेटिव करते हैं. तो क्या करेंगे हम लोग? इसको और नेगेटिव करते हैं. BGS ले लिया मैंने, मान लीजिए -2 वोल्ट. तब आपकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे आएगी. मतलब आपके पास जो ड्रेन करंट है वो पहले से कैसा हो गया? कम हो गया, है ना? आपका ड्रेन करंट पहले से कैसा हो गया? कम हो गया. अगर हमने ले लिया और ज्यादा कम, लाइक -4 वोल्ट, तो वो और कम हो जाएगा. BGS हमने ले लिया और कम, -4 वोल्ट हो गया, ठीक है? और आपने ले लिया मान लीजिए BGS और बहुत कम, -8, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल नाक के बराबर करंट, है ना? और ये हमने कब लिया है? तो BGS हमने क्या लिया है? -8 वोल्ट. ये बिल्कुल नाक के बराबर करंट, डार्क करंट से बोलते हैं, क्योंकि है ही नहीं, ऑलमोस्ट खत्म. तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होने वाला है? आपका ड्रेन करंट कम होता चला जाएगा.
गेट टू सोर्स वोल्टेज आप जितना ज्यादा रिवर्स करते जाओगे, मोर एंड मोर नेगेटिव, आपका ड्रेन करंट जो है वो उतना ही जल्दी कम होता चला, ठीक है ना। फिर देखें, अगर मैं क्या करूं, ये जो पॉइंट जहां पे जाके स्ट्रेट हो जा रहे हैं, ये पॉइंट जहां पे जाके स्ट्रेट हो जा रहे हैं, इनको मिलाऊं, ठीक है, जहां पे फ्लैट हो जा रहे हैं उन पॉइंट से ठीक पहले जहां पॉइंट उनको मिलाएं, तो आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे आपका करंट बढ़ रहा है, और इन पॉइंट के बाद क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट, ठीक है। कब होता था ऐसा, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़े, कब, व्हेन, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ओम्स लॉ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट जो हमारा है वो क्या बता रहा है आपको, ओमिक रीजन, कौन सा रीजन हो गया ये, ओमिक रीजन, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है ओम्स लॉ, ठीक है। इस पार्ट पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट, इसका मतलब ये पार्ट हमारा क्या था, सेचुरेशन रीजन, यहां जाके वो हो गया है सेचुरेट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सैचुरेशन रीजन, ठीक। और ये जो खत्म हो गया यहां पे, ये मैंने बनाया, ऐसे बनाया था, ये वाला पार्ट, इसे क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में ये वर्क करेगा एज अ ओपन स्विच, कौन वर्क करेगा ओपन स्विच, जेएफईटी। ओमिक रीजन में ये काम करेगा एज अ क्लोज स्विच, और ये वो रीजन है सैचुरेशन रीजन जहां पे हम जेएफईटी से वर्क लेते हैं एज एन एम्पलीफायर, यहां पे काम करता है एज एन एम्पलीफायर, एज एन एम्पलीफायर, ठीक है, एज एन एम्पलीफायर, एज एन एम्पलीफायर। अब अगर आप क्या करेंगे, अगर आप क्या करेंगे और फर्दर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे, VDS की वैल्यू और फर्दर बढ़ाएंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा ब्रेक डाउन, लाइक दिस। याद है ब्रेक डाउन, कल पढ़ाया था, जेनर डायोड पढ़ाया था। करंट क्या होगा, एकदम से शार्प फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट। ये वाला रीजन हमारे पास क्या बता रहा है, दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन रीजन, ये कल पढ़ा था हम लोगों ने। कौन सा ब्रेक डाउन होगा ये, अवलांचे की जेनर, हाँ, ये क्वेश्चन है आपके पेपर का। जेएफईटी में जो ब्रेक डाउन होता है एन चैनल में, वो कौन सा है, अवलांचे इफेक्ट कि जेनर इफेक्ट, क्वेश्चन था आपके पेपर का जो कल PDF शेयर कर रहा था कोई मुझसे, बना लो उसको। पूरी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको यहाँ समझा दी है। जेनर, वोल्टेज बढ़ाने से हो गया, वोल्टेज हाई कर दिया, जेनर में हाई था, लो था, फिर अवलांचे इफेक्ट है। फिर देखो नीचे और देखो, यहाँ पे, यहाँ देखो, देखते रहे, सब लिखवा देंगे पॉइंट बाद में। नीचे देखो यहाँ पे, ड्रेन टू सोर्स वो वोल्टेज, ड्रेन टू सोर्स वो वोल्टेज जिस पर आपका ड्रेन करंट कहां चला गया, सेचुरेट हो गया। ड्रेन टू
ड्रेन टू सोर्स वो वोल्टेज, ये वोल्टेज BDS है ना, ड्रेन टू सोर्स वो वोल्टेज जिसपे आपका कहां चला गया, वो सैचुरेशन में। ड्रेन टू सोर्स वो वोल्टेज जिसपे वो कहां चला गया, इसको हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ये कौन सी है, 0 पे है। ये कब आया, ये कब आया, -2 पे। और ये कब आया, -4 पर। तो ड्रेन टू सोर्स वो वोल्टेज जिस पर आपका ये सैचुरेशन में चला जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है। जैसे वो एंटर करेगा सैचुरेशन में, तो BDS की किस वैल्यू पे एंटर कर रहा है, उसको नाम दिया हमने पिंच ऑफ। अभी सब लिख पाएंगे, बस बना लो, आप ड्रॉ कर लो, ये सारी चीजें आप ड्रॉ कर लो इसमें बस। अब इसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले GFPT के बारे में, आप यहां से सब डेटा बता सकते हैं, जो भी पूछेगा आपसे। कुछ भी आपसे पूछेगा, आप यहां से सब डेटा बता सकते हो। ठीक है ना। ठीक है, लिखें, चलो देखिए पॉइंट। पहला पॉइंट, ब्रेक डाउन इन FET, ब्रेक डाउन इन FET, break down in FET due to avalanche effect, break down in FET due to avalanche effect। अगला पॉइंट, drain characteristics of FET, drain characteristics of FET are called, drain characteristics of FET are called constant current, are called constant current, are called constant current characteristic, are called constant current characteristic, are called constant current characteristic। और लिखें, FET can be used as, FET can be used as, FET can be used as constant current source, FET can be used as constant current source। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, FET is voltage, FET is voltage controlled, FET is voltage controlled, FET is voltage controlled current source। FET is voltage controlled current source, है ना। इन ब्रेक डाउन, इधर लिख दिया ना, ओमिक वो अवलांच हो गया ना, ब्रेक डाउन लिखवा दिया ना, पे लिखे, इन द ओमिक रीजन, इन द ओमिक रीजन FET कैसे काम करेगा, हाँ वो तो ठीक है, और ओमिक रीजन में कैसे काम करता है, कल जो लिखवाया था वैसे बताओ, एज अ रजिस्टर, है ना, देख लो। इन द ओमिक रीजन FET can work, FET can work as a linear device, that is resistor, FET can work as a linear device, that is resistor। तो कौन सा रजिस्टर, वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर, और अगला ब्रैकेट में वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर, वोल्टेज
वेरिएबल रजिस्टर। अगला, फॉर एम्प्लीफिकेशन, फॉर एम्प्लीफिकेशन, फॉर एम्प्लीफिकेशन application, for amplification application, FET is operated, FET is operated, FET is operated कहां पे? Very good, operated in saturation region, FET is operated in saturation region। ये सब क्वेश्चन है आपके एग्जाम के ना। ओके, फिर मैं अब लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें लिखवा दिया ऑलरेडी, बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है। मैं लिख चुका हूँ, सैचुरेशन में काम कर रहा है एज एन एम्पलीफायर, ओम में काम कर रहा है क्लोज स्विच, कट ऑफ में काम कर रहा है एज अ ओपन स्विच। ठीक है, लिख चुके हैं हम लोग सारी चीज। एक और लिखें पॉइंट, saturation region is also called, saturation region is also called, saturation region is also called current saturation region, is also called current saturation region, current saturation region, or pinch off, PINCH dash OWM, or pinch off region, or pinch off region। ठीक है, लास्ट पॉइंट, FET is operated, FET is operated, FET कब ऑपरेट करेगा बताओ? जब BDS आपका पिंच ऑफ वोल्टेज से ज्यादा होगा। FET कहां काम करता है? यहां काम करता है ना। यहां वो कब पहुंचेगा? जब आपकी BDS की वैल्यू BP से ज्यादा होगी, तभी तो सैचुरेट हो पाएगा वो, है ना। FET is operated when BDS is greater than BP। रेड कलर हो गया तो ठीक है। अब लिख लें जनरल इक्वेशन। इस पे मान लीजिए आपसे कुछ या तो इक्वेशन पूछ लेगा तो बताओ इक्वेशन क्या है, या फिर उस पर क्वेश्चन करा लेगा आपसे। जनरल इक्वेशन फॉर ड्रेन करंट, जनरल इक्वेशन फॉर ड्रेन करंट, जनरल इक्वेशन फॉर ड्रेन करंट, जनरल इक्वेशन फॉर ड्रेन करंट। लिखें, लिखें, in the saturation region of FET, in the saturation region of FET, ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं इक्वेशन। ये इक्वेशन ड्रेन करंट की बोर्ड पे लिखी हुई है आपके। ID is equal to IDSS 1 minus VGS अपॉन BP का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहां पे ये जो ड्रेन करंट है वो इस के स्क्वायर के बराबर है ना, दिख रहा सभी को। ये जो ड्रेन करंट का रिलेशन है वो गेट टू सोर्स वोल्टेज के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, देख लो एक लाइन यहां, FET इज अ स्क्वायर लॉ डिवाइस। क्यों बोला हमने, इस फॉर्मूले समझ जाइए आप। तो पूछेगा बताइए स्क्वायर लॉ डिवाइस कौन सी है, लिख के नाम दे देगा आपको, आप बता दें किसकी है। FET है स्क्वायर लॉ डिवाइस। फिर लिखें इन JFET ID, यहां पे मैं FET लिख दिया, JFET लिखना है ना, जी लिखना JFET। इन JFET
ID decreases in JFET, ID decreases as a parabolic variation. पूछेगा बताइए कैसा वेरी करता है, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, सर्कल, स्क्वायर, क्या टिक करोगे? JFET, in JFET ID decreases as a parabolic variation with gate to source voltage. ये बनाया था आपने, ये बनाया था, यस और नो? ऐसे बनाया था पैराबोलिक, गेट टू सोर्स साथ में ये बनाया था। और पी टाइप ऐसे बनाया था, है ना? पैराबोलिक वेरिएशन है, बनाए जो होती है, बना चुके हम, समझाने के लिए बताया मैंने हमें। फिर आईडी हमारा ड्रिफ्ट करंट है कि डिफ्यूजन? ड्रिफ्ट, क्योंकि वो जो पोटेंशियल लगाया हमने उसकी वजह से फ्लो हो रहा था ना, जो पोटेंशियल लगाया आपने यहाँ पे कोई डिफ्यूजन नहीं है कि एक जगह हायर कॉन्सेंट्रेशन है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल लगा कुछ और यहाँ लगा, उसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या आया, डिस्ट्रीब्यूशन आया, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर डिप्लेशन लेयर की बिर्थ आई, है ना? तो ये जो यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल, ठीक है, मतलब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ड्रिफ्ट करेंट। देख लो, आईडी इज अ ड्रिफ्ट करंट। आईडी मतलब ड्रेन करंट है ना, आईडी मतलब ड्रेन करंट, आईडी इज अ ड्रिफ्ट करंट। लिखे, आईडी इज अ मेजॉरिटी कैरियर करंट, आईडी इज अ मेजॉरिटी कैरियर करंट। कोई माइनॉरिटी माइनॉरिटी का सीन नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है? एफईटी, मॉसफेट, इनमें माइनॉरिटी कैरियर की बात नहीं चलती, सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर। फिर लिखिए, आईडी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, ड्रेन करंट जो है वो टेम्परेचर के साथ कम होता जाता है। आईडी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, अगर ये डिक्रीज करेगा विद टेम्परेचर तो क्या बोले, एनटीसी की पीटीसी? एनटीसी, लिखो ब्रैकेट में एनटीसी। आईडी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, लिखिए वहां ब्रैकेट में एनटीसी। बीजीटी क्या था? पीटीसी पढ़ाया था कल, बीजीटी था पीटीसी, और एफईटी क्या है हमारा? एनटीसी, ठीक है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालें, अगली हेडिंग डालें, पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज। नेक्स्ट हेडिंग इज पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या था पिंच ऑफ वोल्टेज? अभी बताया मैंने, पिंच ऑफ वोल्टेज क्या था? ड्रेन टू सोर्स, वो मिनिमम वोल्टेज जब आपका करंट कहां चला जाए, सैचुरेशन चला जाए। देख लो, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, ध्यान रखना। सबसे पहले कब एंटर किया, बाद में तो एंटर, वो तो सैचुरेट है ही वो। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, it is defined as the minimum drain to source voltage where ID, drain current, where ID enters into saturation, where ID, the drain current, enters into saturation। फिर मैक्सिमम पिंच ऑफ वोल्टेज कब था? देखो जरा, कब था मैक्सिमम पिंच ऑफ वोल्टेज? ये है मैक्सिमम, ये पिंच ऑफ वोल्टेज, ये पिंच यहां पे कम हो रही वैल्यू, तो मैक्सिमम पिंच ऑफ वोल्टेज कब है? ये है। और ये मैक्सिमम पिंच ऑफ वोल्टेज कब आया? व्हेन, सही है, देख लो, द मैक्सिमम पिंच ऑफ वोल्टेज इन द एफईटी, the maximum pitch of voltage in the FET occurs, maximum pinch of voltage in the FET occurs when BGS is equal to 0,
ओके, अगर आप बीजीएस अप्लाई करेंगे लाइक 0, -2, -4, तो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, देख लो, व्हेन बीजीएस इज अप्लाइड, व्हेन बीजीएस इज अप्लाइड, when BGS is applied, the pinch of voltage is reduced. When BGS is applied, the pinch of voltage is reduced. When BGS is applied, the pinch of voltage is reduced. ठीक है। अच्छा, जो लोकस है पिंच ऑफ वोल्टेज का, वो कैसा है, देखो ये पॉइंट थे, यही पॉइंट थे जहां पे वो एकदम कांस्टेंट हो रहा था, मैंने पॉइंट बनाए थे। तो इसका लोकस जो है कैसा है, कैसा है इसका लोकस, बताओ, व्हाट हैपेंड। हाँ, तो इसका लोकस कैसा है, पैराबोला, देख लो। द लोकस ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज, ये एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के। द लोकस ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज इज अ पैराबोला, इज अ पैराबोला। कुछ फॉर्मूले हैं वो लिख लेते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं उनको लिख लेते हैं, लिख लीजिए। एफईटी पैरामीटर्स, एफईटी पैरामीटर्स, एफईटी पैरामीटर्स। सबसे पहले नंबर 1 एफईटी पैरामीटर्स, सबसे पहले नंबर 1 ट्रेन रेजिस्टेंस, सबसे पहले नंबर 1 ट्रेन रेजिस्टेंस, बोर्ड पे लिखा हुआ है ट्रेन रेजिस्टेंस। ये होता है आपके पास डेल्टा बीडीएस अपॉन डेल्टा आईडी, डेल्टा बीडीएस अपॉन डेल्टा आईडी। और क्या रखना है आपको, बीजीएस को रखना है आपको कांस्टेंट, बीजीएस रखना है आपको कांस्टेंट। दूसरा पैरामीटर दूसरा पैरामीटर है ट्रांस कंडक्टेंस, दूसरा पैरामीटर है ट्रांस कंडक्टेंस, जीएम, ट्रांस कंडक्टेंस जीएम। ये होता है आपके पास डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीजीएस, और कांस्टेंट क्या रखना है, वीडीएस, कीपिंग वीडीएस एज अ कांस्टेंट। लास्ट है आपका एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, लास्ट आपका है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, लास्ट है आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसको बोलते हैं म्यू। ये होता है आपके पास डेल्टा वीडीएस अपॉन डेल्टा वीजीएस, डेल्टा वीडीएस अपॉन डेल्टा वीजीएस, और कीपिंग ड्रेन करंट एज अ कांस्टेंट, एंड कीपिंग ड्रेन करंट एज अ कांस्टेंट। चलिए एक और इक्वेशन लिखे। अच्छा, रिलेशन क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, म्यू आर डी और जीएम में, ये फॉर्मूले साहब लिखे हुए हैं, इनको देख के बताओ क्या रिलेशन है आपस में इनका। हाँ, क्या लिखना चाहिए, अपॉन आर डी इंटू, आप देखो यार आर डी जीएम का मल्टीप्लाई करो, क्या म्यू आ रहा है, ये फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। म्यू का मतलब क्या है, म्यू होता है आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज गेन, म्यू का मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज गेन, ठीक है ना।
म्यू क्या होता है आपके पास, मैक्सिमम वोल्टेज गेन। एक फॉर्मूला और लिख लें, जनरल इक्वेशन फॉर ट्रांस कंडक्टेंस, जनरल इक्वेशन फॉर ट्रांस कंडक्टेंस, जनरल इक्वेशन फॉर ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, इन द saturation region of FET, in the saturation region of FET, in the saturation region of FET, ये लिखा है फॉर्मूला, GM is equal to minus 2 times of IDSS divided by VP, 1 minus VGS upon VP। ठीक है, ओके। अगर हम करते हैं VGS 0 तो क्या हो जाएगा, when VGS is 0, उस टाइम पे GM क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ IDSS अपॉन VP, हो जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, GM नॉट। GM नॉट क्या है, मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, GM नॉट। और कब आएगा ये, जब आप क्या करेंगे, VGS कर देंगे 0। इसकी यूनिट लिखना भूल गया था, मैं लिखता हूँ यूनिट, इसकी है मोम इनवर्स। ओके, एक पॉइंट और बताओ आप लोग मुझे, जब VGS 0 होता है उस टाइम पिंच ऑफ वोल्टेज कैसा होता है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम। तो मैं इसको लिख दूं कुछ, VP नॉट मैक्सिमम, क्या हो जाएगा ये हो गया मैक्सिमम पिंच ऑफ वोल्टेज, VP नॉट, मैक्सिमम पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज लिख लें, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ FET, टर्मिनल वोल्टेजेस एंड करंट ऑफ FET, ऐसे लिख लो, टर्मिनल वोल्टेजेस एंड करंट ऑफ FET। ये सोर्स है, ये ड्रेन है आपके पास, और ये आपके पास गेट टर्मिनल, सोर्स ड्रेन गेट टर्मिनल। ठीक है, एन टाइप ले रहे हैं तो मैंने साइन बना दिया, ये एन टाइप ले रहे हैं तो मैंने चैनल का साइन बना दिया ये। ठीक है, सो हियर दिस इज द वोल्टेज बिटवीन गेट एंड, सॉरी दिस इज द वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड गेट। क्या लिखे इसको, दिस इज द वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स, and here this is the voltage between drain and source. So from this we can say that VDS is equal to what, VDG plus VGS। ओके, करंट यहां क्या फ्लो करेगा, क्या नाम देंगे उसको, ड्रेन करंट। यहां करंट क्या होगा, सोर्स करंट। और यहां करंट क्या होगा, गेट करंट। क्या होता है FET में, 0। इसका मतलब ID इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज, ड्रेन करंट इज इक्वल टू सोर्स करंट मैग्नीट्यूड वाइज। सो मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रेन करंट इज इक्वल टू सोर्स करंट। अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज नहीं लिखते हैं
साइन के साथ लिखते हैं तो ये आएगा आपके पास माइनस आई एस इज इक्वल टू आई डी, अगर आप साइन लेते हैं तो, ठीक है। अगर आप बात करेंगे मैग्नीट्यूड वाइज तो ठीक है, क्योंकि एक आपके पास इनसाइड जा रहा है, एक बाहर आ रहा है, दोनों के साइन कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। चाहे आप यहाँ माइनस लिख लो चाहे माइनस, अगर साइन लेंगे तो ये होगा, ठीक है। बस एक दो क्वेश्चन करते हैं, खत्म हो गया आपका जीएफटी। क्वेश्चन लिखे पहला, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज गेन ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज गेन ऑब्टेन्ड, what is the maximum voltage gain obtained from FET, what is the maximum voltage gain obtained from FET having 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 GM 5 मिलीसीमेंस, GM दे रखा आपको 5 मिलीसीमेंस एंड RD दे रखा आपको 20 किलो ओम। और RD रखा आपको 20 किलो ओम, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज गेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम FET हैविंग GM इज 5 मिलीसीमेंस एंड RD इज 20 किलो ओम। क्या पूछा आपसे, क्या पूछा है, क्या फाइंड करना है, म्यू, क्या फॉर्मूला है, करो सॉल्व क्विकली।
कितना आ रहा है? 100, इट्स 100. नेक्स्ट. नेक्स्ट. What is the maximum transconductance? What is the maximum transconductance for a JFET? What is the maximum transconductance for a JFET having IDSS 8 milliampere, having IDSS 8 milliampere and BP is -4 volt. What is the maximum transconductance for a JFET having IDSS is 8 milliampere and BP is -4 volt? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला? -2 IDSS डिवाइड बाय, बस सिंपल. सॉल्व करो जल्दी से, चेक कर लो क्या आ रहा है. RDSS is 8, BP is -4. -4 BP है ना, कैंसिल हो जाएगा ना माइनस से माइनस, तो यहां से कितना आ गया? 4 मिलीसीमेंस. 4 मिलीसीमेंस. नेक्स्ट. calculate the GM. Calculate the GM for a JFET. Calculate the GM for a JFET. Calculate the GM for a JFET having IDSS is 8 milliampere. IDSS is 8 milliampere. BP is -4 volt. IDSS is 8 milliampere. BP is -4 volt. And it is biased to operate at calculate the GM for a JFET having IDSS 8 milliampere, BP is -4 volt and biased to operate at sorry, BGS is equal to -1.8 volt. फॉर्मूला क्या बोलो? GM is equal to -2 IDSS upon BP 1 माइनस, बस सब डेटा आपको दे रखा है, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा. इस फॉर्मूले में सारे डेटा, जो भी डेटा दे रखे हैं, प्लग करिए, आंसर आ जाएगा. सारा 2.2 मिलीसीमेंस. ठीक है. नेक्स्ट.
when gate to source voltage of a FET changes, when gate to source voltage of a FET changes from, when gate to source voltages VGS, when gate to source voltages VGS changes from -3 volt to -3.1 volt, -3 volt to -3.1 volt, and ID, drain current, ID changes from 1.3 milliampere to 1 milliampere, 1.3 milliampere to 1 milliampere. Assuming other parameters are constant, assuming other parameters are constant, find GM, find GM, find GM. क्या था GM का फॉर्मूला? डेल आई डी डिवाइड बाय VGS, डेल्टा आई डी डिवाइड बाय डेल्टा VGS. कितना चेंज है देखो जरा, बाद में आईडी कितना हो गया 1, पहले कितना था 1.3, VGS बाद में कितना हो गया -3.1, पहले कितना था -3. सॉल्व कर लो. डेल्टा मतलब क्या, डिफरेंस ही तो है, बिफोर आफ्टर माइनस बिफोर. लास्ट क्वेश्चन. कितना है, कितना कितना आ रहा है 0.03, मतलब 3 मिली सीमेंस. मैं मिली कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, 0.03, 0.003 है ना, ठीक है, 3 मिली सीमेंस. लास्ट, find the drain current, find the drain current ID, find the drain current ID if BGS is equal to -1 volt, if BGS is equal to -1 volt, BGS is equal to -1 volt and BP is -8, BP is -8 volt. Find the ID. And also, और क्या चाहिए आपको? And the IDSS is 20. And the IDSS is 20 milliampere. Find the drain current. करो. फॉर्मूला क्या है? ID is equal to what? IDSS यही फॉर्मूला है. रख दो सारे वैल्यू, देखो क्या आ रहा है आंसर, बता दो कितना आ रहा है.